Or in the descending tract, we studied pyramidal tract, corticospinal, and corticobulbar tract. In corticospinal tract, we studied the origin of pyramidal tract and then course of pyramidal tract, कहाँ से होके पास होता है, और medulla में corticospinal tract pyramidal tract created pyramid, and then in the lower part of medulla there was pyramidal decussation, crossing of fibers, 85% fibers crossed to the other side. And then we studied apoplexy or stroke, hemiplasia, quadriplasia, paraplasia, and then today we will then action of pyramidal tract. Today we will study extrapyramidal tract. Okay. What are extrapyramidal pathways? Extrapyramidal system is made up of those areas in the central nervous system that are concerned with muscular movement, and equilibrium. ठीक है, muscular movement and posture and equilibrium. तो लेकिन other than pyramidal system and cerebellar system, and these fibers, pyramidal system की जो fibers थे, corticospinal fibers, they were not forming any synapse in their descending pathway, but extrapyramidal system fibers form various synapses with the nuclei coming in their descending pathway. Like which type of nuclei? Nuclei of cerebral cortex, nuclei of basal ganglia, nuclei of hypothalamus, nuclei of reticular formation. तो इन सब nuclei से ये अपना synapse form करते हुए आते हैं, जबकि pyramidal tract कोई synapse pathway में form नहीं करता, वो directly lower motor neurons पर जाता है. और in the spinal cord, the fibers form separate groups according to their site of origin. According to their site of origin, they are called rubrospinal, tactospinal, reticulospinal. ठीक है, तो according to their site of origin, they form separate groups in the spinal cord. रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, सबसे पहले एक्स्ट्रापिरामिडल सिस्टम में कौन कौन से पाथवेज हैं? रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से पाथवेज हैं? रूब्रोस्पाइनल एक्स्ट्रापिरामिडल में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है, टेक्टोस्पाइनल एंड टेक्टोबल्बर ट्रैक्ट और रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस और बंडल. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो याद रखने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन कहाँ से होता है इनका. पूरा मत याद रखो, लेकिन ओरिजिन और क्रॉस्ड है कि अनक्रॉस्ड है. तो इट रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट originates from the red nucleus of midbrain, nucleus magnocellular located in the midbrain. It crosses immediately to opposite side, मतलब ये crossed है. और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट originates from superior corticate, जो ब्रेन होता है वहां पर डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी में, मतलब कॉर्टेक्स का रिमूवल हो गया ड्यू टू हेमीप्लेजिया और सम अदर रीजन, तो वहां पर ये पोस्चर कंट्रोल, कॉर्टिकेट रिजिडिटी में पोस्चर कंट्रोल करने में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इसका रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट मेनली टोन एंड पोस्चर कंट्रोल करता है. इसके बाद टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट mediate reflex postural movement in response to visual and auditory stimuli. इसको कहते हैं visospinal reflex. It is called visospinal reflex. It is response of head in movement of head in response to visual and auditory stimuli is called visospinal reflex. तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट mainly visospinal reflex control करता है. Then reticulospinal tract facilitated by pontine fibers and inhibited by medullary fibers. Voluntary movements influence mainly gamma motor neurons.
और अल्ट्रेशन इन मसल टोन, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। और वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट का मेन एक्शन होता है इक्विलिब्रियम। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेटरी, मैं एडमिट कर दिया। वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट facilitatory influence upon the reflex activity in spinal cord upon the mechanism control muscle tone, mainly extensor group, anti, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी ग्रेविटी ग्रुप ऑफ मसल्स को ये फैसिलिटेटरी इन्फ्लुएंस डालता है। तो ये इक्विलिब्रियम कंट्रोल करता है। वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट इज फॉर इक्विलिब्रियम। और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल fasciculus coordination of reflex ocular movements and integration of eye and neck movements। ठीक है, coordination of reflex ocular movements, integration of eye and neck movements। तो ये हो गए। और कौन से फंक्शन होते हैं, तो हमारी मेन फंक्शन क्या है एक्स्ट्रापिरामिडल ट्रैक्ट के, मसल टोन, कंट्रोल ऑफ मसल टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर टोन एंड पोस्चर कंट्रोल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर मैंने देखा नहीं एक्चुअली, जीरो लंबाई के साथ। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट फॉर विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स। विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या होता है, विजुअल स्पाइनल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड इन रिस्पांस टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। और they control complex movements of the body and limb such as coordinated movements of arms and legs during walking। वॉक करते टाइम जो आर्म्स एंड लेग्स का मूवमेंट कंट्रोल करना होता है, इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स रोल प्ले करते हैं। एंड दे एक्सर्ट टोनिक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द लोअर सेंटर्स। लोअर सेंटर्स पे टोनिक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर इनका एक्स्ट्रा पिरामिडल का रीजन हो जाता है तो ये इंक्रीज रिजिडिटी इन दी मसल्स, मसल्स में रिजिडिटी इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज और अगर इनका लीजन हो जाता है एक्स्ट्रापिरामिडल, टोनिक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द लोअर सेंटर्स पे टोनिक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। तो अगर इनका लीजन हो जाता है तो इट इंक्रीज रिजिडिटी ऑफ द मसल्स, मसल्स की रिजिडिटी इंक्रीज कर देते हैं और इसको रिलीज फिनोमिना कहते हैं, और रिलीज फिनोमिना। अगर पिरामिडल ट्रैक्ट का डैमेज हो जाए तो कुछ एक्सटेंट तक एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। इफ द पिरामिडल ट्रैक्ट इज डैमेज देन एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट टेक ओवर देयर फंक्शन टू सम एक्सटेंट। इसके बाद हेमीप्लेजिया पढ़ेंगे हम लोग। लीजन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट, हेमीप्लेजिया। लीजन ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया। तो हेमीप्लेजिया में हमने क्या पढ़ा था, पैरालिसिस ऑफ अपोजिट साइड, हाफ अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है। दिस कंडीशन गिव राइज टू मार्क्ड वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ बॉडी ड्यू टू इंजरी टू द पिरामिडल ट्रैक्ट। और पिरामिडल ट्रैक्ट की इंजरी सबसे ज्यादा कहां पर जब सबसे ज्यादा कहां ससेप्टेबल होता है, इनटू द इंटरनल कैप्सूल ड्यू टू हेमरेज और थ्रोम्बोसिस ऑफ लेंटिकुलोस्ट्रैट आर्टरी, due to hemorrhage or thrombosis of lenticulostriate artery, branch of middle cerebral artery। ठीक है, तो weakness and paralysis of opposite side of body due to damage to the pyramidal tract। There is weakness and loss of voluntary muscle movements, weakness and loss of voluntary muscle movement associated with spasticity हो जाती है। इनिशियल स्टेजेस में तो फ्लैसिडिटी होती है, बाद में परमानेंट होती है वो स्पैस्टिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ रीजन क्या है, इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल ड्यू टू थ्रोम्बोसिस ऑफ लेंटिकुलोस्ट्रैट आर्टरी, ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इसके बाद देखते हैं एक्यूट स्टेज में क्या होता है। एक्यूट स्टेज 2 to 3 वीक्स तक होती है। एक्यूट स्टेज इनिशियली स्टेज ऑफ शॉक आती है, स्टेज ऑफ शॉक इन दी ऑल द मसल्स ऑफ द अपोजिट साइड टोनलेस हो जाती हैं। मसल्स जो अफेक्टेड साइड है वो जो है अफेक्टेड साइड की मसल्स टोनलेस हो जाती हैं और जो है सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। तो फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस हो जाती है, सारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है तो
फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस होती है, रिजेंबल्स स्पाइनल शॉक। दिस कंडीशन रिजेंबल्स स्पाइनल शॉक। जब स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती है तो इनिशियल की स्टेज को स्पाइनल शॉक कहते हैं। तो ये स्पाइनल शॉक की स्टेज को रिजेंबल करती है, बट दिस इज अ टेम्पोरेरी स्टेट, दिस इज अ टेम्पोरेरी स्टेट एंड in 2 to 3 weeks good recovery occurs, and within 2 to 3 weeks good recovery occurs। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितना ड्यूरेशन लगता है गुड रिकवरी होने में, 2 to 3 weeks। ठीक, फिर पैरालिसिस ऑन द अफेक्टेड साइड अफेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ फेस, लेग एंड आर्म। पैरालिसिस ऑन द अफेक्टेड साइड, तो कौन सी, वहां पर वॉलंटरी मूवमेंट्स हो नहीं पाएंगे, फेस, लेग्स एंड आर्म में वॉलंटरी मूवमेंट नहीं हो पाते हैं। Hand is more severely affected. Hand is more severely affected, and discrete movements of the fingers are lost, permanently lost। ये जो चेंज होता है discrete movement of, जो फाइन मूवमेंट होता है फिंगर्स का, that is lost permanently। और movements which involve both sides of the body, movement which involve both sides of the body, such as respiration, movement of head and trunk, respiration, movement of head and trunk which involve both sides of the body are usually retained। और अगर cortico nuclear fibers escape injury, eyeball movements persist। cortico nuclear fibers escape injury, तो eyeball movements persist। emotional movements remain intact and are very strong। emotional movements are remain intact। और सारे रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस एक्यूट स्टेज में लॉस्ट होते हैं। एक्यूट स्टेज में कोई भी रिफ्लेक्स नहीं मिलता हमें, सुपरफिशियल या डीप रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारी एक्यूट स्टेज थी जिसमें हमें फ्लैसिड पैरालिसिस मिल रही थी, टोनलेस मसल्स, टोनलेस है, कोई भी वॉलंटरी एक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो है फाइन मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स ये सब लॉस्ट है, फाइन मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स के परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं, सारे रिफ्लेक्सेस सुपरफिशियल और डीप लॉस्ट हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक्यूट स्टेज के बाद स्टेज ऑफ रिकवरी आती है आफ्टर 2 to 3 weeks। 2 to 3 weeks 2 to 3 weeks later reflex activity returns to the affected site, reflex activity returns to the affected site, showing that ये जो reflexes हैं वो they can be controlled by isolated lower levels also। isolated lower level से भी reflexes control हो सकते हैं, इसलिए 2 to 3 weeks बाद reflex activity returns। इसके बाद हम चेंजेस देखते हैं, कौन कौन से चेंजेस हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मसल टोन एंड पोस्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मसल पहले तो फ्लैसिड पैरालिसिस थी, उसके बाद 2 to 3 वीक्स के बाद यहाँ पर स्पैस्टिक पैरालिसिस आ जाएगी। स्पैस्टिक मसल्स स्पैस्टिक हो जाएंगी और दे टेक ओवर एबनॉर्मल पोजीशन, एबनॉर्मल पोजीशन ले लेती हैं और दे टेंड टू बी फिक्स देयर, वहां पर फिक्स रहती हैं। दे टेंड टू बी फिक्स देयर, फॉर एग्जांपल जैसे शोल्डर्स का कैसा मूवमेंट हो जाता है, शोल्डर्स एडक्टेड रहता है और प्रोनेटेड रहती है, आर्म फोर आर्म प्रोनेटेड रहती है, एंड एल्बो पे और रिस्ट जॉइंट पे और फिंगर्स भी सब फ्लेक्स्ड हो जाती हैं। ठीक है, और लेग्स भी एडक्टेड रहते हैं और एक्सटेंशन एट द नी एंड एंकल जॉइंट, प्लांटर फ्लेक्शन रहता है। ठीक है, तो ऐसे एबनॉर्मल पोजीशन ये ले लेते हैं, टेक ओवर एबनॉर्मल पोजीशन, टेंड टू बी फिक्स देयर। उसके बाद एसोसिएटेड मूवमेंट्स भी कुछ होती हैं। तो एसोसिएटेड मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? एसोसिएटेड मूवमेंट्स होती क्या है? सेमी वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑन द अफेक्टेड साइड by any forceful sustained voluntary muscular contraction on the normal side। अगर हम नॉर्मल साइड पे कोई फोर्सफुल सस्टेन मस्कुलर कंट्रैक्शन कर रहे हैं तो अफेक्टेड साइड में सेमी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं, उनको एसोसिएटेड रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हेमीप्लेजिक सब्जेक्ट में जो नॉर्मल साइड वाली रिस्ट है, फिस्ट इज क्लेंच्ड, अगर बहुत ही टाइटली क्लेंच करें फिस्ट को अगर नॉर्मल साइड पे, तो अपोजिट साइड में हमें क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट, इंक्रीज फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट। इसके बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कैसे होते हैं? एक्यूट स्टेज में तो सारे रिफ्लेक्सेस लॉस थे, लेकिन जो स्टेज ऑफ रिकवरी है, स्टेज ऑफ रिकवरी में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कैसे मिलेंगे?
डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस एक्सागरेटेड मिलते हैं, हाइपर एक्टिव मिलते हैं, एक्सागरेटेड एंड एंकिलोनस और नीक्लोनस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एंकिलोनस एंड नीक्लोनस में भी प्रेजेंट। फिर सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कैसे मिलेंगे? सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस नहीं मिलते हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस और लॉस्ट। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? जैसे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, ठीक है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में अगर एब्डोमेन की स्किन को स्ट्रोक करते हैं तो अंडरलाइंग मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं। और क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स में मीडियल साइड ऑफ द थाई को अगर की स्किन को अगर स्क्रैच करेंगे तो टेस्टिस इज रिट्रैक्टेड इनटू द इंग्वाइनल कैनाल। और प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या होता है? स्ट्रोकिंग आउटर एज ऑफ द सोल। सो आउटर एज ऑफ द सोल को अगर स्ट्रोक करेंगे तो देयर इज फ्लेक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो एंड स्मॉल टोज। थंब, ग्रेट टो और स्मॉल टो का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ऑन स्ट्रोकिंग आउटर साइड ऑफ द सोल। और जो है सारे सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर लॉस्ट क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट डैमेज्ड है। लेकिन कुछ हेमीप्लेजिक सब्जेक्ट्स में एक वाइड स्प्रेड रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे नॉक्सियस स्टिमुलस हमने अगर सोल को दिया तो क्या होगा? देयर इज डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ एंकल, एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन होता है, और फ्लेक्शन ऑफ नी एंड फ्लेक्शन ऑफ फुट। कुछ हेमीप्लेजिक सब्जेक्ट्स में ये हमें वाइड स्प्रेड रिएक्शन देखने को मिलती है। उसके बाद डिस्टर्बेंसेस इन द वॉलेंट्री मूवमेंट, disturbances in voluntary movement, considerable improvement occurs in the legs and patient may walk with slight limp in the gait. Patient may walk about with a slight limp and good degree of power returns to the face and arm. Good degree of power returns to the, मतलब यहाँ पर सब चीजों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्टेज ऑफ रिकवरी में, ठीक है। गेट मतलब क्या होता है? गेट मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग। तो हेमीप्लेजिक सब्जेक्ट्स में गेट कैसा होता है? person walks on a narrow base, walks on a narrow base and difficulty in bending, उसको झुकने में दिक्कत होती है तो क्या करता है? difficulty in bending his knees, so he drags his feet on the ground, अपनी पैर को वो घिसट घिसट के चलता है, drags his feet on the ground and as if they were glued to the floor, जैसे उसके पैर चिपके हुए हों फ्लोर में, ऐसे चलता है। तो इट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिक या स्पैस्टिक गेट कहते हैं इसको। कैसे चलता है? वॉक्स ऑन अ नैरो बेस, नैरो बेस पे चलता है और उसके बेंड होने में, नीज बेंड होने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ड्रैग्स हिज फीट ऑन द ग्राउंड एज इफ दे वर ग्लूड टू द ग्राउंड, घिसट घिसट के पैर चलता है। इट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिक या स्पैस्टिक गेट। इसके बाद ये तो हो गया आपका हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में एक्यूट स्टेट था जिसमें मसल्स टोनलेस थी और फ्लैसिड पैरालिसिस हो गई थी, ऑल रिफ्लेक्सेस वर लॉस्ट, सारे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट थे, और जो है डिस्क्रीट मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर इज परमानेंटली लॉस्ट। उसके बाद 2 to 3 वीक्स बाद हमारी स्टेज ऑफ रिकवरी आई। स्टेज ऑफ रिकवरी में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्सेस रिटर्न हो रहे हैं, रिफ्लेक्सेस वापस आ रहे हैं, और मसल टोन एंड पोस्चर कैसी है? एबनॉर्मल सी मसल टोन, एबनॉर्मल सी पोजीशन लिम्स ने एक्वायर कर लिया एंड दे टेंड टू बी फिक्स देयर। कैसी कैसी पोजीशन एक्वायर कर रही है? ये देखो, ये हैंड का पोजीशन देख रहे हो? शोल्डर इज एडक्टेड, फोर आर्म इज प्रोनेटेड एंड इज फ्लेक्स्ड एट एल्बो एंड रिस्ट एंड फिंगर्स आर आल्सो फ्लेक्स्ड। तो ऐसी एबनॉर्मल सी पोजीशन एक्वायर कर लेता है हैंड। और उसके बाद एसोसिएटेड मूवमेंट्स भी होती हैं कि आप नॉर्मल साइड का हम फिस्ट अगर क्लेंच्ड करें तो अफेक्टेड साइड का हैंड जो है वो फ्लेक्शन में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव एक्सैगरेटेड हो सकते हैं, क्लोनस प्रेजेंट हो सकता है, और सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट मिलते हैं, लेकिन किसी किसी में वाइड स्प्रेड रिएक्शन ऑफ फ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद गेट कैसा होता है? नैरो बेस पे चलता है और पैर ड्रैग्स हिज फीट ऑन द ग्राउंड एज इफ दे वर ग्लूड टू द सरफेस। इसको स्पैस्टिक या हेमीप्लेजिक गेट कहते हैं।
हाँ, तो पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या डिफरेंस, हमें पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स के डिफरेंस देखने को क्या मिलते हैं। एक तो हम ओरिजिन में डिफरेंस बता देंगे कि ओरिजिन में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पिरामिडल फाइबर्स। पिरामिडल फाइबर्स हमने देखा मोटर एरिया से और प्री मोटर एरिया से डिसेंड कर रहे थे। और एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, एक तो प्री मोटर एरिया से भी डिसेंड होते हैं और रेड न्यूक्लियस एंड सुपीरियर फॉलिकुलस रेटिकुलर फॉर्मेशन से। रेड न्यूक्लियस, सुपीरियर फॉलिकुलस रेटिकुलर फॉर्मेशन, lateral vestibular nucleus, medial vestibular nucleus। तो इन सब फाइबर से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम ओरिजिनेट होता है। और क्या डिफरेंस होता है, जो पिरामिडल सिस्टम होता है उसके फाइबर्स पाथवे में कहीं पर साइनस फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के पाथवे फाइबर्स पाथवे में साइनस फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, कहाँ कहाँ साइनस फॉर्म कर रहे थे, विद इन न्यूक्लियाई ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विद इन न्यूक्लियाई ऑफ बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंसेस हो गए पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में। और जो है इसके अलावा आप लोगों को अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में डिफरेंस पता होना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में डिफरेंस क्या होता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कौन सा होता है, अपर मोटर न्यूरॉन कौन सा होता है जो सीएनएस से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट लोअर मोटर न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली मसल्स को सप्लाई करते हैं, जो डायरेक्टली मसल से इनर्वेटेड होते हैं, वो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, इट अफेक्ट्स होल ग्रुप ऑफ मसल्स, होल ग्रुप ऑफ मसल्स जैसे हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया या मोनोप्लेजिया। और लोअर मोटर न्यूरॉन सिंगल मसल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन में कोई एट्रोफी या फेसिकुलेशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में कोई एट्रोफी या फेसिकुलेशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में सीवियर एट्रोफी एंड फेसिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं। फेसिकुलेशंस क्या होते हैं, विजिबल कंट्रैक्शन ऑफ मसल अंडर द स्किन। फेसिकुलेशंस क्या होते हैं, विजिबल कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अंडर द स्किन, दैट इज कॉल्ड फेसिकुलेशन। इसके अलावा अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में स्पैस्टिक पैरालिसिस मिलती है। स्पैस्टिक पैरालिसिस इज प्रेजेंट इन अपर मोटर न्यूरॉन रीजन। और लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में फ्लैसिड पैरालिसिस मिलती है। लोअर मोटर न्यूरॉन रीजन में फ्लैसिड पैरालिसिस मिलती है। अपर जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, टेंडन रिफ्लेक्सेस या डीप रिफ्लेक्सेस, वो जो है अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। और लोअर मोटर न्यूरॉन में सारे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं, सुपरफिशियल और डीप बोथ रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट, क्योंकि जो रिफ्लेक्स पाथवे होता है वो इनकम्प्लीट हो गया होता है। उसके बाद बेबिंस्की साइन कौन सा होता है, बेबिंस्की साइन, बेबिंस्की साइन क्या होता है, जब अब नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स हम कैसे देखेंगे, सोल को लेटरल सरफेस पे हम एक टैक्टाइल फर्म स्टिमुलस देंगे, एक फर्म स्टिमुलस, जैसे हम बाइक की लेके उसकी सोल को स्क्रैच करेंगे लेटरल साइड पे, पूरा लेटरल साइड टू दी लिटिल टो सबसे लिटिल टो की तरफ उसको स्क्रैच करेंगे, फिर मीडियल टू दी मीडियल अक्रॉस दी मेटाटार्सल्स, मीडियल अक्रॉस दी मेटाटार्सल्स। ऐसे हम देखते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स, ये सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है। और नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स इज फ्लेक्चर रिस्पॉन्स होता है, जिसको नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स कहते हैं। देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्रेट टो एंड द लिटिल टोज, सबका डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये देखो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ से जो की होती है उसको यहाँ से यहाँ लेटरल सरफेस पे ले जाते हैं। उसके बाद अक्रॉस द मेटाटार्सल्स हम ग्रेट टो की तरफ ले जाते हैं। तो जो फ्लेक्शन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ग्रेट टो और रिमेनिंग टोज का। तो ये नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स है। इसके बाद अगर जो है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सटेंसर हाल्सिस लॉन्गस, तो जो है और रिमेनिंग टोज रिमेनिंग टोज की फैनिंग हो जाती है, यानी कि एबडक्शन हो जाता है टू दी अपोजिट साइड। तो ये
एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स है, ये नॉर्मल नहीं होता, ये अब नॉर्मल होता है, इसको कहते हैं बेबिंस्की साइन पॉजिटिव है। तो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव किसमें मिलता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, ठीक है। बेबिंस्की साइन पॉजिटिव किसमें मिलता है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में पॉजिटिव मिलता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेक्सर रिस्पॉन्स मिलता है, हमें नॉर्मल प्लांटर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक। तो बेबिंस्की साइन कब कब प्रेजेंट होता है? इन्फेंट्स में बिलो 1 ईयर तक, जब तक बच्चे वॉकिंग नहीं शुरू कर देते तब तक भी बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। तो तब और जो है डीप स्लीप में भी बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है, और पिरामिडल ट्रैक्ट अगर डैमेज है, कोई एबनॉर्मलिटी है पिरामिडल ट्रैक्ट में, तब भी बेबिंस्की साइन हमें पॉजिटिव मिलता है। और कुछ नॉर्मल पर्सन्स में भी हमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिल सकता है। ऐसे पर्सन डीप फास्ट वॉक नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेबिंस्की साइन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके फाइनल ईयर तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबिंस्की साइन सब लोग जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। और अपर मोटर न्यूरॉन रीजन में बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिलता है हमें, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम, उनके फंक्शन, एक्स्ट्रा पिरामिडल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कौन कौन से फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, कौन से अनक्रॉस्ड है, और उनके फंक्शन में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट टोन एंड पोस्चर कंट्रोल कर रहा था, रेटिकुलो टेक्टोस्पाइनल विजुओस्पाइनल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेस्टिबुलो स्पाइनल रिफ्लेक्स इक्विलिब्रियम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके फंक्शन हो गए एक्स्ट्रा पिरामिडल के। उसके बाद हेमीप्लेजिया पड़ा। हेमीप्लेजिया सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोन होता है? पिरामिडल ट्रैक्ट, इन द लेंटिकुलेट, कौन सी आर्टरी होती है? लेंटिकुलर स्ट्रैट आर्टरी, इंटरनल कैप्सूल को जो सप्लाई करती है, लेंटिकुलर स्ट्रैट आर्टरी और ब्रांच ऑफ मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, तो वो सबसे ज्यादा प्रोन होती है। फिर एक्यूट स्टेज एक आती है जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस रहती है, हाइपोटोनिया रहता है। उसके बाद एक रिकवरी की स्टेज आती है 2 to 3 वीक्स बाद, उसमें एबनॉर्मल पोजीशन लिम्ब ले लेता है और एसोसिएटेड मूवमेंट्स होती है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होते हैं लेकिन डीप रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव होते हैं। उसके बाद हेमीप्लेजिक या स्पैस्टिक गेट हो जाता है। उसके बाद हमने देखा पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम में डिफरेंस, और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग जरूर पढ़ लेंगे, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए आपकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग स्पाइनल ट्रैक्ट लीजन पढ़ेंगे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड लीजन पढ़ेंगे।